Hello, my dear friends. After discussing SN2 reactions and the problems related to SN2 reaction, today I am going to discuss with you SN1 reaction. So, what is the name of SN1 reaction? SN1 reaction is nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction, monomolecular. SN1. Okay. Another thing, the rate of reaction is not depend. Independent means not depend on nucleophile, but depends on only the concentration of substrate. मतलब कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसके ऊपर ही इसका रेट डिपेंड करेगा. दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. SN2 का रेट ऐसे था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज सबस्ट्रेट. तो इसके ऊपर 1 पावर है, 1 पावर है, तो 1 + 1. तो उस थियरी में लिखा था इट इज अ केमिकली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. अब इसका जो ऑर्डर है यहाँ पे देखिए, इट इज डिपेंड ऑन ओनली सबस्ट्रेट. और शॉर्ट में मैं ये लिख सकता हूँ, द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एंड पावर इज 1 हियर, सो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और ऑर्डर वी विल डिस्कस इन डिटेल इन केमिकल काइनेटिक. अभी आपको ये इतना ही समझना है. ठीक है. तो इट इज SN1 इज मोनोमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. its rate is not depend on nucleophile, depends only on concentration of substrate. ये बात कैसे हो गई कि अगर आप कहीं पे खड़े, मतलब कि चलो नदी के किनारे आप खड़े, तो आप इसमें उसमें से कितना पानी भर सकते हैं, जितना आपके पास कंटेनर बड़ा हो उतना. अगर आपके पास ग्लास है तो सिर्फ आप 1 गिलास पानी घर ला सकते हो. पूरा डब्बा है तो पूरा डब्बा भर के ला सकते हो. ठीक है. एक टैंक है तो टैंक भर के ला सकते हो. तो हाउ मच वाटर you can carry at home, it not depend on how much water present in river. It is depend on only the container which you have. Remember, see here, this is the best example of SN1 reaction. This is the substrate, tertiary butyl bromide, and Br. It react with a OH minus. So this one is the substrate and this one is the nucleophile. This bromine is substituted by OH minus and the final product is CH3 thrice carbon OH. Tertiary butyl bromide is the, write down name. This is a tertiary butyl bromide, gives us a tertiary butyl alcohol, and Br minus is the leaving group. ठीक है. Rate only depend on substrate, not depend on nucleophile. SN1 reaction mechanism takes place in 2 steps. See, in SN2 the reaction takes place in 1 step only, from reactant and reagent, means substrate and nucleophile, transition state form, and immediately transition state converted into final product and leaving group leaves. Here first step takes place in which carb cation is formed. Carbon bromine bond is the polarized. Not only carbon bromine, you can take CCl bond also. In place of bromine you can write chlorine also. So polarized carbon bromine bond undergo cleavage and carb cation is formed and bromide ion leaves. Okay. एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक बिल्कुल नहीं है. न्यूक्लियोफाइल इज वेटिंग फॉर अटैक. ठीक है. तो इन फर्स्ट स्टेप लिविंग ग्रुप लीव्स फर्स्ट and carb cation is formed. See here, this carbon bromine bond break down, carbon positive form, bromine minus leaves here. तो पहले स्टेप में आप यहाँ पे देखिए, पहला स्टेप ध्यान से,
ब्रोमीन लीव्स, छोड़ दिया, एंड कार्ब कैटायन इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये स्लोली स्टेप होता है, स्लो स्टेप। एंड अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यहाँ रेट डिटरमाइन होगा कि अब जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करने के लिए कितना कार्ब कैटायन अवेलेबल है। एक कार्ब कैटायन है तो एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दो कार्ब कैटायन है तो दो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। इट इज नॉट डिपेंड अपॉन हाउ मच न्यूक्लियोफाइल इज देयर। ओके, न्यूक्लियोफाइल तो 10 खड़े हैं, लेकिन कार्ब कैटायन हमारे पास 5 है, तो 5 न्यूक्लियोफाइल ही अटैक कर पाएंगे, बाकी के अटैक नहीं कर पाएंगे। तो नॉट डिपेंड अपॉन हाउ मच न्यूक्लियोफाइल इज टेकन, डिपेंड अपॉन हाउ मच सबस्ट्रेट इज टेकन। ठीक है, तो पहले स्टेप में जो हमारा सबस्ट्रेट है, that substrate form a carb cation, and that is the slow step. Slow step is a rate determining step and reversible also. तो उसमें फिर ब्रोमीन लग जाता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि फिर से वो अटैक ना कर पाए। स्टेप 1 के बारे में जो लिखा है वो आप जरा नीचे पढ़ लीजिएगा। वो जो मैंने बताया वही लिखा है कि ये स्लो स्टेप है, रिवर्सिबल है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। ये देखिए, स्लो है, रिवर्सिबल है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। अब यहाँ पे एनर्जी हमें रिक्वायर पड़ती है CBr बॉन्ड ब्रेक कर। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो CX बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है। CX बॉन्ड इज नॉट breaking by nucleophile, but it is breaked by solvent. solvent जो हम लेते हैं वो इसको ब्रेक करता है। तो थ्रो सॉल्वेशन एन हैलाइड आयन विथ प्रोटॉन, तो होता क्या है कि मानो कि सॉल्वेंट हमने लिया H2O, तो ये H2O जो है वो पोलर सॉल्वेंट है और प्रोटिक है। तो H2O में हमें पता है कि H प्लस होता है, OH माइनस होता है। तो ये H प्लस जो है वो हैलाइड आयन के साथ कंबाइंड होके HX बना लेता है। तो ये हैलाइड आयन को, वो SN2 में क्या था कि हैलाइड आयन को न्यूक्लियोफाइल लीव करता था, तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे स्ट्रॉन्ग चाहिए। यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल को कुछ करना ही नहीं है, जो हैलाइड रिलीज होता है वो सोलवेंट की वजह से होता है। तो सोलवेंट ज़्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए, सोलवेंट मस्ट बी एनर्जेटिक। सो CBr बॉन्ड इज breaking of CBr bond is obtained through the solvent, and that is called solvation with the proton of protic solvent. protic solvent कौन कौन से है इसमें? ये H2O protic solvent है, एसिटिक एसिड का लिक्विड जो है ये प्रोटिक सॉल्वेंट है। जहाँ पे जो सॉल्वेंट में H प्लस आयन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN2 में जो सॉल्वेंट है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, उसमें H प्लस प्रेजेंट नहीं था। तो द रेट डिपेंड्स ऑन only on the concentration of alkyl halide, not on the concentration of OH minus. Okay, स्लो स्टेप इन्वॉल्व ओनली द अल्काइल हैलाइड, क्योंकि पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई पार्ट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। ध्यान में रखना, अब जब कार्ब कैटायन फॉर्म हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, देन न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? ठीक है, वीक है तो भी आराम से अटैक करेगा, क्योंकि अब तो कोई उसको रोकने वाला है नहीं। वो न्यूक्लियोफाइल जो पहले था वो तो एज अ लिविंग ग्रुप निकल गए। देन इन अ सेकंड स्टेप, कार्ब कैटायन being polar attracted from either side by nucleophile to form final product, and that one is the fast step. जैसे ही कार्ब कैटायन बनता है तो न्यूक्लियोफाइल पूरा अलर्ट रहता है, कार्ब कैटायन बना नहीं कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक टू आइदर साइड मीन्स
ये पीछे से भी अटैक कर सकता है, आगे से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है मैंने अभी एक ही प्रोडक्ट बताई है, ये प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकती है, CH3 ये यहाँ पे और OH। So what does it mean either side? OH can attack on a carbocation from either from left side or from right side. तो आप देखिए ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज। ठीक है, अगर ये कार्बन किराल हुआ, अगर ये कार्बन, हालांकि ये किराल नहीं है और यू कैन से कायराल नहीं है, तो हमारी जो ये प्रोडक्ट है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बोथ आर नॉट एनांशियोमर्स टू ईच अदर। ठीक है, अगर ये कार्बन कायरल होता तो ये दोनों, ये और ये दोनों, बोथ आर एनांशियोमर्स टू ईच अदर एंड बोथ आर नॉन सुपर इम्पोसिबल एंड बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। वो अटैक को हम डिटेल में दिखा रहे हैं। यहां पे भी आप कर सकते हो, प्लस करके और करके ये दूसरी प्रोडक्ट यहाँ पे डाल सकते हो, CH3 ऐसा, आइदर दिस वन और दिस वन। ये 50% होगी, 60% होगी, दैट इज डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ रिएक्शंस। ओके, अब मुझे जो बात बतानी है वो अकॉर्डिंग टू स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर हमारा सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होता, if our taken substrate is optically active, then our product also optically active. If substrate is optically inactive, then product also optically inactive. अब देखिए मैं दूसरी प्रोडक्ट रिएक्टेंट ले रहा हूँ जिसमें कार्बन कायरल है। तो ये जो है ये कार्बन, ये हमारा सबस्ट्रेट है, 1, 2, 3 और 4 वैलेंसी, चारों वैलेंसी डिफरेंट है, मतलब कि ये हमारा कार्बन कायरल कार्बन है, मतलब सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इन फर्स्ट स्टेप, दिस स्टेप इज अ स्लो एंड रिवर्सिबल, एंड इन फर्स्ट स्टेप कार्ब कैटायन इज फॉर्म्ड एंड लिविंग ग्रुप लिव्स, एंड देन आफ्टर यहाँ पे हमको पूरा दिखाया गया है कि कार्बन कैन अटैक आइदर साइड, आइदर फ्रॉम बैक साइड और फ्रॉम फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड अटैक करेगा तो OH यहाँ पे लगेगा, बैक साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पे लगेगा। जब अटैक होगा तब कार्बन के तीनों ग्रुप A, B और C प्लानर होंगे, यहाँ से अटैक करेगा तो ये तीनों ग्रुप इस साइड एडजस्ट, मतलब राइट साइड एडजस्ट हो जाएंगे। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा तो तीनों जो ग्रुप है ABC डिफरेंट और सेम, मे बी सेम मे बी डिफरेंट। अगर सेम है तो हम बोलेंगे कि सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तीनों में से 2 सेम है तो भी कार्बन किराल कायरल नहीं है, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। इस केस में ये कार्बन कायरल है, मीन्स द फाइनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नंबर 1 and this product number 2 draw mirror here, then both are mirror image to each other and both are called enantiomers to each other। अब वो इक्वल 50-50% है कि नहीं वो बात की बात है। तो SN1 में इन्वर्जन सिमेट्री थी, तो with respect to substrate the product was totally inverted। यहाँ पे with respect to substrate the product is inverted as well as retention। retention means same, जहाँ पे लिविंग ग्रुप था वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और एक प्रोडक्ट ऐसी है कि जहाँ न्यूक्लियोफाइल था उसकी ऑपोजिट साइड, ये देखिए ऑपोजिट साइड अटैक कर रहा है, यहाँ पे सेम साइड अटैक कर रहा है, मतलब कि ये ऑपोजिट साइड अटैक कर रहा है वो इन्वर्जन, सेम साइड अटैक कर रहा है वो रिटेंशन है। उसमें C2H5 C2H5 सेम पोजीशन, CH3 सेम पोजीशन, C6H5 सेम पोजीशन, यहाँ Br था उसकी जगह पे यहाँ पे OH आ गया, तो उसको बोलते हैं रिटेंशन। वो मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा रिटेंशन और इन्वर्जन, ये तो अभी सिर्फ आपको मैं हिंट्स, वो थोड़ा बेस डाल रहा हूँ
कि आगे जाके मैं रिटेंशन इन्वर्जन मुझे पूरा लेना है डिटेल में कि रिटेंशन में क्या होता है, इन्वर्जन में क्या होता है। तो ये एक किराल कार्बन लेके पूरा समझाया है। वही चीज़ वो लोग हम लोग यहाँ पे कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन तो थियरी बड़ी हो जाती। यहाँ पे भी हम ऐसे कर सकते थे कि देखिए ये OH का अटैक हो रहा है, अगर सेम साइड होगा तो ये दो प्रोडक्ट ऐसे करके बना सकते थे कि बैक साइड से अटैक होगा तो प्रोडक्ट ये मिलेगी। फिर भी आप इस रिएक्शन में भी ऐसे कर सकते हो कि प्लस एक प्रोडक्ट ये भी मिल सकती है जो मैंने आगे यहाँ पे 3 ग्रुप और लिविंग ग्रुप यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम ऑर्डर देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर बेटर लिविंग ग्रुप बेटर ऑर्डर, तो RI RBr RCl RF, alkyl iodide gives more SN1 than alkyl bromide, alkyl chloride, alkyl fluoride, क्योंकि I जो है ये बेटर लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन से, ब्रोमीन बेटर है क्लोरीन से, क्लोरीन बेटर है फ्लोरीन से। वो SN2 में भी यही था। अब यहाँ पे एक नई चीज़ मुझे वो जो करनी है वो फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे SN1 का कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक बात आपने नोट की, हैव यू नोटेड वन थिंग हियर, स्टीरिक हिंड्रेंस इज नॉट important here, primary secondary and tertiary. If alkyl halide is tertiary, then carb cation is tertiary. Alkyl halide is secondary, then carb cation is secondary. Alkyl halide is primary, then carb cation is primary. So order of SN1 reaction will be reverse than order of SN2 reaction. SN2 में hindrance tertiary अल्काइल में ज़्यादा थी तो SN2 कम था। अब SN1 में टर्शरी अल्काइल टर्शरी कार्ब कैटायन फॉर्म करेगा, इसलिए तो मैंने यहाँ पे टर्शरी हैलाइड लिया है। अब आपने अगर नोट किया होगा तो आप देखिए मैंने जब SN2 लिया तो प्राइमरी हैलाइड लिया, तो SN1 में मैं यहाँ पे टर्शरी हैलाइड ले रहा हूँ, क्योंकि SN2 प्राइमरी हैलाइड में फंस जाता है, SN1 टर्शरी हैलाइड में फंस जाता है, क्योंकि इसमें कार्ब कैटायन फॉर्म करना है और कार्ब कैटायन इज हाईली स्टेबल, ठीक है। तो आप SN1 प्रिपेयर करिए, ये मैंने जो समझाया स्टेप बाय इतना आप लिख लीजिए, राइट नोट ऑन SN1 रिएक्शन। इसके फैक्टर्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पूरा आपको क्या करना है, यू हैव टू कंपेयर फर्स्ट बोथ, ठीक है। इसके बाद में दोनों को कंपेयर, गिव डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1। अभी तो आपको कुछ कुछ डिफरेंस समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको ये भी बताने वाला हूँ कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।